کریں گے ہاں گردشی حرکت کی بنیاد ہے دائمی حرکت. اس لیے ہم پہلے جو اپنی بحث کا موضوع ہے دائمی حرکت. دائمی حرکت میں اپن نے ہٹاؤ دیکھیں جو کہ زاویے کی شکل میں اس کی پیمائش ہوتی ہے، لہٰذا اس کو ہم نے زاویہ ہٹاؤ. اپنے کو پتا ہے ہٹاؤ سے جو ہے دوسری طبی مقدار وجود میں آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رفتار. کیونکہ یہاں پر رفتار بھی زاویے پر سے آئے گی، مطلب زاویہ ہٹاؤ پر سے آئے گی، اس لیے اس کو بھی اپن نے زاویہ رفتار کا نام دیا. پھر اپنے کو یہ بھی پتا ہے کہ رفتار سے جو ہے اسرا وجود میں آتا ہے. یہاں پر بھی ساری چیزیں جو ہے زاویے کی شکل میں آ رہی ہیں، زاویہ ہٹاؤ پر سے آ رہی ہیں، اس لیے اسرا کو جو ہے پر زاویہ اسرا کریں. اب اس کے بعد میں اپن جاتے ہیں آگے کی طبعی مقدار، اور آگے کی طبعی مقدار جو ہے وہ ہے قوت. اب ہم بحث کرنے جا رہے ہیں دائمی حرکت میں قوت کے اوپر. ٹھیک ہے، تو قوت پر بحث کرنے سے پہلے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ نیوٹن نے جو قانون دیے ہیں حرکت کے لیے وہ کیا ہے. تو پہلے اپن دیکھتے ہیں نیوٹن کے حرکت کے قوانین. ہم نے کو پتا ہے نیوٹن نے حرکت کے تعلق سے 3 قانون دیے. یہ تینوں قانون کے اوپر اپن جیسی ضرورت ہوگی ویسے اس قانون کے اوپر اپن بحث کریں گے. آج اپنی بحث کا موضوع قوت ہے، اور قوت سے تعلق رکھنے والا نیوٹن کا قانون جو ہے وہ نیوٹن کا دوسرا قانون ہے. نیوٹن نے جو حرکت کے 3 قانون دیے ہیں اس میں سے دوسرا قانون جو ہے یہ اپنے کو قوت کے بارے میں معلومات فراہم کراتا ہے. اپنے کو معلوم ہے نیوٹن کا دوسرا قانون یہ ہے کہ معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح عمل کرنے والی قوت کے راس تناسب میں ہوتی ہے، اور یہ عمل کرنے والی قوت کی سمت میں ہے. یہ تبدیلی جو ہے یہ قوت کی سمت میں ہے. تو یہ ہے نیوٹن کا دوسرا قانون، معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح. اگر معیار حرکت کی تبدیلی کی شرح کی بات کریں اپن، اور اس کو اگر اپن حساب کی زبان میں لکھیں تو یہ ہو جاتا ہے mv مائنس mu اپون t، جہاں پر m جو ہے اس جسم کی کمیت ہے جو حرکت کر رہا ہے، v ہمیشہ کی طرح آخری رفتار کو ظاہر کرتا ہے، u جو ہے یہ ابتدائی رفتار ہے، اور t جو ہے وہ وقت ہے جس میں رفتار جو ہے u سے v تک تبدیل ہوتی ہے. تو یہاں پر mv مطلب کمیت اور رفتار کا حاصل ضرب. اپنے کو معلوم ہے کہ وہ طبعی مقدار ہے جس کو اپن معیار حرکت کہتے ہیں، اور اس کو اپن p سے ظاہر کرتے ہیں. معیار حرکت جو ہے p کمیت ضرب رفتار، معیار حرکت. تو کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ آخری رفتار ہے تو اس کو اپن آخری معیار حرکت کہیں گے، اور یہ ابتدائی رفتار ہے اور یہ کمیت اور ابتدائی رفتار کا حاصل ضرب ہے، لہٰذا اسے اپن ابتدائی معیار حرکت کہیں گے. لہٰذا mv مائنس mu جو ہوگا یہ معیار حرکت کی تبدیلی کو ظاہر کرے.
और ये तब्दीली अपन ले रहे हैं टी वक्त में, मतलब टी वक्त में म्यारी हरकत कितने से तब्दील हुआ, ये काहे से पता चलेगा, एम वी माइनस एम। और अगर इसको हम वक्त से तकसीम कर देंगे तो वो इकाई वक्त में म्यारी हरकत की तब्दीली आएगी, जिसको अपन कहते हैं म्यारी हरकत की तब्दीली की शरह। तो न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक ये हो गया म्यारी हरकत की तब्दीली की शरह, ये रास्त तनासुब में होगी किसकी, अमल करने वाली। तो अगर हम न्यूटन के कानून का जो बयान है उसको रियाजी में तब्दील करें तो वो इस तरीके से आएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी तनासुब मतलब म्यारे हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त। अब इसको अपन जो है तनासुब की अलामत को हटाएंगे, तो तनासुब की अलामत को हटाने का क्या उसूल है ये अपने को पता है। वहाँ पर अपन एक मुस्तकिल देते हैं और जो है बराबर की अलामत आएगी। इसलिए अगर अपन वो उसूल यहाँ पर लगाएं तो ये मसावत क्या हो जाएगी, एम वी माइनस एम यू बटे टी इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर मुस्तकिल जो है के है, यहाँ पर के जो है ये तनासुब का मुस्तकिल। ये तनासुब के जो मुस्तकिल होते हैं ये तजुर्बा पर से निकाले जाते हैं। यहाँ पर न्यूटन ने ये बताया कि यहाँ पर तनासुब का जो मुस्तकिल है उसकी कीमत एक होती है, मुनासिब इकाई में इसकी कीमत कितनी होती है, एक होती है। इसलिए अगर यहाँ पर अपन ए की कीमत मतलब तनासुब के मुस्तकिल की जगह एक रख दें तो ये मसावत क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ से अगर हम m को मुश्तरक निकाल लें तो क्या हो जाएगा, m कॉस में आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर हम इस पर गौर करें, ये जो चीज़ आ गई यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी, तो v जो है आखिरी रफ्तार है, u जो है इब्तिदाई रफ्तार है, तो v माइनस यू ये आगे रफ्तार की तब्दीली और उसको वक्त से तकसीम मतलब यानी रफ्तार की तब्दीली की शरह। और अपने को मालूम है रफ्तार की तब्दीली की शरह को हम इसको हम ए से जाहिर करते हैं, इसलिए ये आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। ये जो है क़ुव्वत की मसावत है F इज इक्वल टू एम ए। तो ये मसावत जो है दरअसल ये नतीजा है न्यूटन के दूसरे कानून का। अगर हम न्यूटन के दूसरे कानून को ज़रा तफसील से देखें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। ये हम नीचे की क्लासेज में पढ़ भी चुके हैं इसको, लेकिन यहाँ पर इसको हम ज़रा अलग तरीके से देखते हैं। अब ये मसावत से हम कैसा नतीजा अखज़ करते हैं, इससे किस तरीके का नतीजा अपन अखज़ करते हैं। तो अब अगर इस मसावत पर हम गौर करें तो ये m जो है ये कमियत है, और अपने को मालूम है कि कमियत जो है ये हमेशा क्या रहती है, मुस्तकिल, कमियत नहीं बदलती, मुस्तकिल रहेगी। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इसका अपन अगर जो है यहाँ का उलट अमल करें, मतलब बराबर की अलामत और मुस्तकिल को हटाएं तो यहाँ तनासुब की अलामत आ सकते हैं, तो ये आ जाएगा F तनासुब ए। मतलब क़ुव्वत और इसरा एक दूसरे के रास्त तनासुब में। अब ये मसावत से हम ऐसा नतीजा निकालते हैं कि जहाँ कहीं इसरा होगा वहाँ पर क़ुव्वत होगा। न्यूटन के दूसरे कानून से हमको ये बात चाहिए थी कि जहाँ कहीं इसरा होगा वहाँ पर, ये हमको चाहिए नहीं कि अगर कहीं पर कोई हरकत हो रही है और उसमें इसरा आ रहा है, इसका मतलब यह है कि लाजमी तौर पर वहाँ पर एक क़ुव्वत अमल कर रही है। अब हमने देखे दायर की हरकत में और वो भी यकसा दायर की हरकत में अपन ने ये देखे कि उसमें एक इसरा रहता है, यकसा दायर की हरकत में एक इसरा रहता है जो निस्कुत्र के अतराफ होता है और उसकी सिमत मरकज़ की जानिब होती है, जिसको हम मरकज़ जो इसरा कहते हैं। तो यकसा दायर की हरकत में इसरा आता है, इसलिए इस नतीजे पर से हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर इसरा है तो लाजमी तौर पर वहाँ पर एक क़ुव्वत, तो क्योंकि यकसा दायर की हरकत में मरकज़ जो इसरा होता है लिहाजा वहाँ पर एक क़ुव्वत भी होनी चाहिए।
और कुव्वत भी जो होगी वो उसी सिमत में होगी जो कि इसरा की सिमत जो है निष्पुत्र के अतराफ मरकज की जानिब होती है, लिहाजा इस कुव्वत की सिमत भी निष्पुत्र के अतराफ मरकज की जानिब होगी, लिहाजा इस कुव्वत को हम मरकज जो कुव्वत कहेंगे। मरकज जो कुव्वत इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बहस पर से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर कोई ज़र्रा यकसा दायर की हरकत करता है तो उस पर एक कुव्वत अमल करेगी जो निस्पुत्र के अतराफ होगी और मरकज उसकी सिमत मरकज की जानिब होगी, उस कुव्वत को हम कहेंगे मरकज जो कुव्वत। तो यकसा दायर की हरकत में एक कुव्वत होती है जो निस्पुत्र के अतराफ होती है और उसकी सिमत मरकज की जानिब होती है, इस कुव्वत को हम मरकज जो कुव्वत है। अब हम मरकज जो कुव्वत का ज़ाब्ता निकालेंगे। मरकज जो कुव्वत का फिक्रा अपन निकालेंगे, आसानी से अपन निकाल सकते हैं ये मसावत पर। अब देखो कुव्वत की मसावत क्या है। कुव्वत की मसावत अपने लाइए न्यूटन के कानून पर से कुव्वत बराबर कमियत ज़रब इसरा। अब यहाँ पर अपन जो है बात कर रहे हैं दायरवी हरकत। तो दायरवी हरकत में जो इसरा होता है वो कौन सा इसरा होता है? मरकज जो इसरा। कौन सा इसरा होता है? मरकज। तो यहाँ पर अपन ये ले लेंगे मरकज जो इसरा, और कमियत तो अपने को मालूम है मुस्तकिल रहती वही रहेगी कमियत। और यहाँ पर अपन कुव्वत को कौन सी कुव्वत बोल रहे हैं? मरकज जो कुव्वत। इसलिए मरकज जो कुव्वत जो है उसके ताल्लुक से मसावत अपन ऐसी तरकीब दे सकते हैं कि मरकज जो कुव्वत बराबर कमियत ज़रब मरकज जो इसरा। अब यहाँ पर अगर इनके अपन जो है अलामतें रख दें, कमियत को अपन एम से जाहिर करते हैं, मरकज जो इसरा का ज़ाब्ता हम लोग निकाले हैं कि आ गया था ये V²/R। मरकज जो कुव्वत इसको हम लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़ाब्ता जो है ये आ जाएगा mv²/R। तो ये आएगा मरकज जो कुव्वत का ज़ाब्ता mv²/R। अब अगर इसको हम कद्र और सिमतिये की शक्ल में जाहिर करें तो कद्र की शक्ल में ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/R। और सिमतिये की शक्ल में वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी सिम किधर हो रही है? मरकज। इसको तो क्या मरकज। और ये जो सिम होती है ये कौन सी ली जाती है? मनफी ली जाती है, क्योंकि अपन ने देखे हैं निस्पुत्री सिमतिये के अंदर मुस्बित सिम जो अपन ने तय की है ये मरकज से बाहर की जानिब, लिहाजा मरकज की जानिब जो सिम होगी वो मनफी होगी। इसलिए यहाँ पर ये सिम जो है ये मनफी आ जाएगी और ये आ जाएगा mv²/R। और सिमत देने के लिए हम अपन ने क्या ले लेंगे? इकाई सिमतियाँ ले लेंगे। ठीक है, इकाई सिमतियाँ ले लेंगे। R0 क्या है? जहाँ पर R0 जो है ये इकाई सिमतियाँ है और ये सिमतिये की सिम किधर होगी? निस्पुत्र के अतराफ मरकज की। तो ये जो इसका ज़ाब्ता है ये बनेगा काई की शक्ल में, सिमतिये की शक्ल में उसको अपन इस तरीके से जाहिर करेंगे। तो ये मरकज जो कुव्वत उसकी कद्र हो गई और सिमतिये की शक्ल में ये मसावत अपन ऐसी तरकीब दे सकते हैं। तो ये है मरकज जो कुव्वत। अब यहाँ पर मरकज जो कुव्वत के ताल्लुक से अपन ये बात करते हैं कि दायरवी हरकत होगी वहाँ पर मरकज जो कुव्वत। अब हरकत जो है ये कुव्वत से वजूद में आती है, इसलिए अपन कहते हैं कि दायरवी हरकत के लिए मरकज जो कुव्वत ज़रूरी है। बगैर मरकज जो कुव्वत के दायरवी हरकत मुमकिन नहीं है। अब इसकी मिसालें देखते हैं अपन कि जहाँ कहीं पर भी कोई जिस्म दायरवी हरकत कर रहा है
इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई मरकज़ कुव्वत मुहैया करा रहा है। जैसा मिसाल के तौर पर अपन देखते हैं कि सूरज के अतराफ ज़मीन जो है ये तकरीबन दायरी हरकत कर रही है। दायरी हरकत जो है ये मरकज़ कुव्वत के बगैर मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कुव्वत होगी जो उसको मरकज़ होगा। तो हम देखते हैं सूरज और ज़मीन के दरमियान कौन सी कुव्वत होगी। यहाँ पे दोनों के दरमियान कौन सी कुव्वत है? सकली कुव्वत। हर दो अजसाम के दरमियान एक कुव्वत कशिश पाई जाती है जिसको हम सकली कुव्वत कहते हैं। तो यहाँ पर सूरज और ज़मीन के दरमियान एक कुव्वत होगी सकली कुव्वत, और यही कुव्वत जो है ज़मीन की दायरी हरकत की जो है ये पास हो। तो ज़मीन जो है सूरज के अतराफ दायरी हरकत कर रही है, इसको मरकज़ जो कुव्वत कौन मुहैया कराएगा? सूरज और ज़मीन के दरमियान सकली। इसी तरीके से अगर हम दूसरी मिसाल पर गौर करें कि एक पत्थर ले लें अपन और उसको धागे से बांध कर घुमाएं, तो पत्थर की जो हरकत होती है वो दायरी हरकत है। अब यहाँ पर पत्थर की जो हरकत है ये दायरी हरकत है, तो लाजमी तौर पर इसको भी कोई ना कोई मरकज़ कुव्वत देगा। तो यहाँ पर जो कुव्वत होती है ये धागे में तनाव होता है, धागे में तनाव, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर धागे में तनाव पत्थर को ज़रूरी मरकज़ कुव्वत मुहैया कराता है, जिसकी वजह से पत्थर जो है वो दायरी हरकत करने के काबिल बनता है। अगर ये धागा टूट जाए तो यहाँ पर दायरी हरकत जो है ये कायम नहीं रहेगी, ये बिखर जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई है मरकज़ कुव्वत के ताल्लुक से। तो मरकज़ कुव्वत के ताल्लुक से इतनी बात याद रखेंगे आप कि दायरी हरकत बग़ैर मरकज़ कुव्वत के मुमकिन नहीं है। अगर किसी जिस्म को दायरी हरकत करानी हो तो उसको मरकज़ कुव्वत देना पड़ेगा। अब एक और मिसाल अपन देखते हैं कि जब कोई सवारी दायरा नुमा रास्ते पर मुड़ती है या हरकत करती है। अब जैसा मान लो ये सड़क है, ये सड़क जो है यहाँ पर सीधी है, तो अगर सवारी इस रास्ते पर हरकत करती है तो यहाँ पर उसकी हरकत जो है वो खत्ती हरकत होगी। लेकिन जब वो यहाँ पर हरकत करेगी तो उसकी हरकत क्या होगी? दायरी हरकत। दायरी। अब यहाँ पर वो दायरी हरकत करेगी, अपने को मालूम है दायरी हरकत जो है बग़ैर मरकज़ कुव्वत के मुमकिन नहीं। तो ये उसी वक्त जो है इधर मुड़ सकती है जब इसको कोई ना कोई मरकज़ है। तो यहाँ पर इसको मरकज़ कुव्वत कौन देता है? तो यहाँ पर जो है सवारी के पहियों और सड़क की ऊपरी सतह के दरमियान जो रगड़ की कुव्वत होती है वो इसको ज़रूरी मरकज़ कुव्वत। हम देखते हैं अगर रोड जो है ये थोड़ा चिकना हो जाए या अपनी गाड़ी के टायर चिकने हो जाए तो उसकी वजह से रगड़ की कुव्वत कम हो जाती है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है तो जितनी कुव्वत उसको मिलना चाहिए मरकज़ कुव्वत, उतनी कुव्वत उसको नहीं मिल पाती। नतीजे में सवारी जो है ये फिसल जाती है और ये दायरा नुमा रास्ते पर हिफाजत से नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हो गए मरकज़ कुव्वत के ताल्लुक से। अब यहाँ पर न्यूटन का अगर तीसरा कानून अपन देखें तो न्यूटन का तीसरा कानून अपने को ये बताता है कि हर कुव्वत का रद्द अमल होता है, जिसको अपन अमल अमल और रद्द अमल एक दूसरे के मुखालिफ और मसावी। हर अमल का रद्द अमल मसावी लेकिन मुखालिफ से होते हैं। यह न्यूटन का तीसरा कानून। इसका मतलब ये है जब अमल और रद्द अमल ये सब कुव्वतें ही, जैसा अपन ने गेंद दी और दीवार पर मारे तो गेंद जो है दीवार पर अमल करेगी और नतीजे में दीवार जो है अपना रद्द अमल गेंद पर दिखाएगी। तो ये अमल और रद्द अमल है।
ये मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर कहीं पर एक कुव्वत है तो लाजमी तौर पर एक दूसरी कुव्वत होना ही चाहिए। अगर एक कुव्वत है जिसको अपन अमल तस्वुर कर लें तो एक दूसरे कुव्वत जिसको अपन रद्द अमल बोलते हैं वो ज़रूरी है। ये न्यूटन कहता है कि अगर एक कुव्वत है तो दूसरी कुव्वत वहाँ पर होना चाहिए। दोनों की कद्र मसावी होगी लेकिन इनकी सिमत क्या होगी, मुखालिफ। तो यहाँ पर ये न्यूटन के तीसरे कानून से अपनी बात ये समझ में आती है कि अगर एक कुव्वत है तो दूसरी कुव्वत होना चाहिए। अब ये बात लगाते हैं अपन मरकज़ी कुव्वत को कि भाई दायरी हरकत में एक कुव्वत है जिसको अपन मरकज़ी कुव्वत बोल रहे हैं। इसकी सिमत इस कुद्र की अतराफ मरकज़ की जानिब होती है। तो एक कुव्वत है तो लाज़मी तौर पर दूसरी कुव्वत भी होना चाहिए। अब ये दूसरी कुव्वत का मुताला करने के लिए ज़रा थोड़ा सा हमको हटकर बहस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपन हटकर ऐसी बहस करते हैं कि अपने को ये पता है कि हरकत जो है ये एक सिमती चीज़ है, अपने निस्बती चीज़ है। निस्बत से अपन हरकत को बयान करते हैं। जैसा अगर अपन तारीफ पे अपने तारीफ पर गौर करें हरकत की तो अपने देखे हैं कि नाजिर के लिहाज तो ये निस्बती चीज़ है, किसी की निस्बत से अपन मुकाम की तब्दीली बताते हैं। ये जो मुशाहिदा बीन होता है, मुशाहिदा करने वाला होता है, नाजिर जो होता है, ये इसको अपन एक फ्रेम में जो है समझते हैं, एक फ्रेम में समझते हैं। क्योंकि हरकत जो है निस्बती चीज़ है, इसलिए इसकी निस्बत एक फ्रेम से ली जाती है। उस फ्रेम को अपन आम तौर पर निस्बती फ्रेम कहते हैं। निस्बती फ्रेम इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरीके थोड़ा सा अपन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निस्बती फ्रेम के ताल्लुक से बात करेंगे। हालांकि अपन ने पहले भी इसके ऊपर बहस की है। अब देखो यहाँ पर निस्बती फ्रेम जो है हरकत के अंदर हम यूँ तस्वुर करते हैं कि जो मुशाहिदा बीन है, जो नाज़िर है, वो एक फ्रेम में और इस फ्रेम के अंदर जो है वो हरकत हो रही है। मुशाहिदा बीन भी वही है और हरकत भी वहाँ से हो रही है। जैसा मिसाल के तौर पर एक आम निस्बती फ्रेम जो है ये मुहद्दिदी निज़ाम है। मुहद्दिदी निज़ाम जो है ये एक निस्बती फ्रेम है। अगर मुहद्दिदी निज़ाम हमने देखे हैं तो मुहद्दिदी निज़ाम जो है एक निस्बती फ्रेम है और ये दोनों खुतूत जो होते हैं जिनको अपन महवर कहते हैं, इनकी निस्बत से हम लोग नुकात के मुकाम बयान करते हैं। नुकात जो लेते हैं उनके मुकाम जो है ये दोनों महवरों की निस्बत से बयान करते हैं अपन। एक्स मुहद्दिद इतना, वाई मुहद्दिद इतना, मतलब एक्स मुहद्दिद पर इसका फासला इतना, वाई मुहद्दिद पर इसका फासला इतना। तो ये मुहद्दिदी निज़ाम जो है ये दरअसल एक निस्बती फ्रेम है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग हरकत के अंदर भी निस्बती फ्रेम लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर बस में बैठे हैं तो यहाँ पर बस जो होगी ये निस्बती फ्रेम है। अगर हम ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन की जो बोगी होगी, ट्रेन का जो कोच होगा, डब्बा होगा, वो निस्बती फ्रेम है। ये निस्बती फ्रेम जो है इसकी दो किस्में की जाती हैं। निस्बती फ्रेम की हम दो किस्में करते हैं, एक जुमूदी और एक होता है गैर जुमूदी। जुमूदी और गैर, ये गैर जुमूदी जो होता है इसको इसराई फ्रेम भी कहते हैं, इसराई फ्रेम, और इसको अपन गैर इसराई फ्रेम कहते हैं। गैर इसराई, इसको अपन बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, इसको इनर्शियल
और इसको नॉन इनर्शियल। तो यहाँ पर जो हरकत जो होती है, हम ये एक फ्रेम के अंदर करवाते हैं, वहाँ पर मुशाहिदा बीम भी रहेगा और वो जिस्म भी रहेगा जिसमें हरकत। अब यहाँ पर ये दो निस्बती फ्रेम जो अपन ने बनाए हैं, एक है जुमूदी और एक है गैर जुमूदी। देखो जुमूद जो है एक खासियत है और न्यूटन का पहला कानून इस खासियत को बयान करता है। न्यूटन का पहला कानून जो है वो दरअसल जुमूद की खासियत है, और हमको पता है कि जुमूद की खासियत ये है कि हर जिस्म के अंदर अपनी हालत तब्दील ना करने का रुझान पाया जाता है। मतलब अगर जिस्म हालत हरकत में है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो हालत हरकत में ही रहे, और अगर वो हालत सुकून में है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो हालत सुकून में रहे। और ये उस वक्त तक होता है जब तक कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना हो। इसलिए अपन न्यूटन के पहले कानून को बयान करते हैं कि अगर कोई जिस्म हालत सुकून में है तो वो हालत सुकून में ही रहेगा, और अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है तो वो हालत हरकत में रहेगा जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना हो। तो यही जो चीज़ है इसी को अपन जुमूद कहते हैं, यही जुमूद की खासियत है। देखो दो हालतें होती है, एक तो होती है हालत सुकून और एक होती है हालत हरकत। हमेशा जिस्म या तो हालत सुकून में पाया जाएगा या हालत हरकत में पाया जाएगा, और उसकी ये फितरत होती है कि वो अपनी ये हालत तब्दील नहीं करता, खुद से तब्दील नहीं करेगा। ये उस वक्त तब्दील होगी जब कोई उसके ऊपर बैरूनी कुव्वत अमल करे। ठीक है, तो यहाँ पर जुमूदी फ्रेम का मतलब ये है, इससे अपन दो बातें लेते हैं कि एक तो वो फ्रेम जो है हालत सुकून में हो, या अगर हालत हरकत में हो तो यकसा रफ्तार से हरकत करे, तो अगर कोई फ्रेम हालत सुकून में है या अगर हालत हरकत में तो यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है, तो ऐसे फ्रेम को अपन जुमूदी निस्बती फ्रेम कहते हैं। जबकि दूसरा फ्रेम जो है गैर जुमूदी, इसमें वो सुकूनी हालत में नहीं रहेगा, इसमें हालत हरकत में होगा, और दूसरा ये कि उसकी जो हरकत होगी वो यकसा रफ्तार से नहीं होगी, क्योंकि अगर यकसा रफ्तार से होगी तो उसमें इसरा नहीं आएगा। इसरा उस वक्त आता है जबकि रफ्तार तब्दील हो, तो इसको अपन इसराई बोल रहे हैं। मतलब इसकी हरकत ऐसी होती है कि वहाँ पे इसरा आता है, और इसरा उस वक्त आता है जबकि उसकी रफ्तार तब्दील होती है। तो यहाँ पर अगर कोई फ्रेम ऐसी हरकत कर रहा है कि वहाँ पर उसकी रफ्तार तब्दील हो रही है, तो ऐसे फ्रेम को अपन कहेंगे गैर जुमूदी या इसराई। मतलब ये इसरा आएगा, और ये जो गैर इसराई है यहाँ पे इसरा नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ साकिन है तो वहाँ इसरा नहीं आता है, और अगर वो यकसा रफ्तार से हरकत कर रहे तो वहाँ भी इसरा नहीं आएगा। तो ये दो फ्रेम होते हैं, एक होता है जुमूदी और एक होता है गैर जुमूदी। ठीक है, अब जैसा मिसाल के तौर पर अपन लेते हैं कि ट्रेन का एक डिब्बा है खड़ा हुआ है, तो अपन कहेंगे ये जुमूदी फ्रेम है, ये जुमूदी निस्बती फ्रेम। ये अगर वो यकसा रफ्तार से जा रहा है तो भी अपन कहेंगे कि अभी जो फ्रेम है ये जुमूदी निस्बती फ्रेम। इसके बरक्स अगर कोई जो फ्रेम है या बस है या मान लो ट्रेन का डब्बा है, वो अगर हरकत में है और उसकी हरकत की ऐसी है कि रफ्तार मुसलसल तब्दील हो रही है, अगर वो एक ही रफ्तार से जा रहा है तो वो होगा जुमूदी, और अगर उसकी रफ्तार तब्दील हो रही है तो वो होगा गैर जुमूदी। ठीक है, तो ये दो निस्बती फ्रेम होते हैं। अब ये दो निस्बती फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं न्यूटन के कानून की। तो न्यूटन के जो 3 कानून हैं वो जुमूदी निस्बती फ्रेम में सही होते हैं, ये गैर जुमूदी फ्रेम में सही नहीं होते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें। न्यूटन के कानून जुमूदी निस्बती फ्रेम में सही साबित आते हैं, जबकि ये गैर जुमूदी निस्बती फ्रेम में सही साबित नहीं होते।
अब ये कैसा, अब इसकी मिसाल अपन लेते हैं। देखो न्यूटन का दूसरा कानून क्या है, जो कि अपने को मसावत देता है F = ma ओवर। तो यहाँ पर जो है म्यारे हरकत की तब्दीली की शरह कुव्वत के रास तनासुब में होती है, और ये उस सिम्त में होती है, ये कुव्वत की सिम्त में होती है। इसका अगर अपन मतलब लें तो हटाव जो है ये कुव्वत की सिम्त में होता है। जब अपन कुव्वत लगाते हैं किसी चीज के ऊपर तो कुव्वत की जो सिम्त होगी उस सिम्त में हटाव होगा, ये न्यूटन का कानून बताता है अपने। लेकिन अगर इसको अपन मिसाल से समझें, जैसे कि ट्रेन का डब्बा है और ये गैर जुमूदी निस्बती फ्रेम के तौर पे काम कर रहा है, मतलब ये सुकूनी हालत में नहीं है और इसकी रफ्तार भी एक जैसी है। मान लो इसकी रफ्तार बढ़ते जा रही, बढ़ रही और ये इधर इंजन इधर खींच रहा है इसको, मतलब कुव्वत इधर अमल कर रही, कुव्वत इधर अमल कर रही। अब इसमें रख दिया अपन ने एक गेंद रख दिए डब्बे के अंदर। अब न्यूटन के मुताबिक क्या है कि ये जिधर कुव्वत लग रही उधर गेंदें जाना चाहिए, लेकिन अपन देखते हैं गेंद इधर आती पीछे आती, तो यहाँ पर न्यूटन का कानून तो गलत हो, ये हटाव जो है कुव्वत की सिम्त में नहीं आता। लेकिन अगर यही डिब्बा जो है सुकूनी हालत में है तो अगर इस पर जिधर कुव्वत लगाएंगे उधर जाएगा। ये अगर यकसा रफ्तार से भी जा रहा है तो इस पर इधर कुव्वत लगाएंगे उधर जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि न्यूटन के कानून जो है ये जुमूदी निस्बती फ्रेम में सही साबित होते हैं, जबकि ये गैर जुमूदी निस्बती फ्रेम में सही साबित नहीं होते। अब यहाँ पर इस पर कौन सी कुव्वत अमल करी जो इसको इधर लेके जा रही पीछे? अभी जो कौन सी कुव्वत लेके जा रही, क्या अपन उसको ढकेल दो, उसको क्या अपन गेंद पे कुव्वत लगाए उधर? तो यहाँ अपन बोल नहीं सकते कौन सी कुव्वत अमल कर रही है। तो ये कुव्वत जिसकी वजह अपन बयान नहीं कर सकते। देखो अपने पास में तीन कुव्वतें हैं, एक है तजाजुबी कुव्वत या शकली कुव्वत जिसको हम बोल लेते हैं, तजाजुबी कुव्वत भी बोलते हैं, शकली कुव्वत। एक है बरकी मिकनातीसी कुव्वत और एक है न्यूक्लियाई कुव्वत। ये तीन कुव्वतें हैं, और अगर कोई कुव्वत इनकी वजह से आती है, इन कुव्वतों की वजह से उनका वजूद होता है, तो उन कुव्वतों को हकीकी कुव्वतें कहते हैं। और अगर कोई कुव्वत इन कुव्वतों की वजह से वजूद में नहीं आती, ऐसी कुव्वत को अपन वाजिब कुव्वत कहते हैं। वाजिब कुव्वत कहते हैं। जैसा कि अपन मिसाल ले लेते हैं कमियत की, मास की मिसाल ले लो या वजन की मिसाल ले लो। वे अपना वजन काय की वजह से है, जमीन की सभी कुव्वत की वजह से। जमीन जिस चीज को जितनी कुव्वत से अपनी तरफ कशिश करती है उतना उसका वजन होता है। तो अपन बता सकते हैं वजन जो है दरअसल कुव्वत है। वजन जो कुव्वत है किस वजह से आ रही है, तो ये जमीन की सकली कुव्वत है, जमीन की तजाजुबी कुव्वत की वजह से आ रही है, बता सकते हैं वजह। यहाँ पर ये जिसको पीछे जा रहा है, गेंद पीछे जा रही है, किस वजह से जा रही है बता नहीं सकते। तो ये हकीकी कुव्वत नहीं होगी। ऐसी कुव्वतें जो जहाँ पर अपन ये नहीं बता सकते कि ये इन तीन कुव्वतों की वजह से वजूद में नहीं आ रही है, तो ऐसी कुव्वत को अपन वाजिब कुव्वत कहते हैं। ठीक है, कल अपन इसके बारे में और तफसील से देखेंगे वाजिब कुव्वत क्या है और दायरी हरकत में इस कुव्वत का रोल क्या है।